بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ اس کا تیزی سے ابلتا ہوا خون قالین کی سرخی میں اضافہ کرنے لگا۔ چیخ کی آواز سن کر انگریز افسر کی بیوی جاگ گئی تھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھی اور اپنے شوہر کو یوں خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کے منہ سے بھی ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ساتھ ہی اس کا جسم بستر پر گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ غالباً دہشت سے اس کے ہوش و حواس زائل ہو چکے تھے۔ ناہید کا خوبصورت چہرہ اس وقت شفاف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور وہ اپنے خون آلودہ خنجر کو بستر کے تکیے سے صاف کر رہی تھی۔ خنجر کا گھاؤ انگریز افسر کے عین دل پر لگا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تڑپے بغیر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ناہید مڑی۔ وہ اس کمرے میں جس کھڑکی کے راستے داخل ہوئی تھی اس سے گزر کر ایک بار پھر راہداری میں آ گئی۔ اب وہ پوری کوٹھی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کوئی کمرہ یا جگہ ایسی نہیں تھی جہاں گھس کر اس نے دیوار کو ٹھوک بجا کر نہ دیکھا ہو۔ کمروں کے فرش پر بچھے ہوئے قالین بھی اس نے اٹھا کر دیکھے۔ نہ معلوم اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہ شاید کوٹھی کا آخری کمرہ تھا جس کی ایک میز سے ٹکرا کر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے ایک کمرے سے لالٹین بھی اٹھا کر جلا لی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ ناہید کے جسم کے دباؤ سے میز جیسے ہی ایک طرف کھسکی، ایک تیز کھٹکا سا سنائی دیا۔ ناہید چوکنا سی ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے اس کمرے کے قالین الٹنے شروع کر دیے اور جیسے ہی اس نے دیوار کے قریب بچھا ہوا قالین کا کونا پلٹا، اس کے چہرے پر خوشی کی پرچھائیاں سی ناچنے لگی۔ اسے جس شے کی تلاش تھی غالباً وہ اسے مل چکی تھی۔ فرش پر ایک چوکور خلا سا نمودار ہوا اور اس خلا سے ہلکی ہلکی روشنی ابھر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً وہ کسی تہہ خانے کے راستے کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا۔ ناہید نے لالٹین اٹھا کر خلا کا جائزہ لیا۔ وہاں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ناہید خلا میں اتر گئی۔ زینے عبور کرتے ہی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی پلکیں بوجھل سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے کی کھوئی ہوئی معصومیت پھر لوٹ آئی تھی۔ سامنے والی پتھریلی دیوار پر ایک لائن سے 15 نوجوان لٹکے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر دیوار میں لگے حکوں میں لٹکا رکھا تھا۔ ان کے ادڑے ہوئے جسموں سے پتہ چلتا تھا کہ ان پر انتہائی تشدد کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کی نظریں ناہید پر پڑی اور پھر مجھے ہر طرف سے ملکہ ملکہ کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ ان نوجوانوں نے ناہید کو ملکہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو میرے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ حمزاد نے مجھے اس کا نام ناہید بتایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سب کو قید و بند سے آزاد کرا چکی تھی، مگر ان 15 میں سے 2 ایسے بھی تھے جو ہمیشہ کے لیے ہر قید سے آزاد ہو چکے تھے اور ان کی آزاد روحوں کو کوئی قید نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید ان دونوں کی لاشوں کے قریب دوزانو بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر مرنے والوں کے جسم پر گر رہے تھے۔ تم دونوں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر میں نے تم دونوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئی۔ آج کے بعد پلچیوں والا ٹھکانہ مشکوک ہو گیا ہے۔ تم سب یہاں سے مٹیالہ برج جاؤ گے، وہ جگہ ابھی محفوظ ہے۔ مجھے ابھی ایک اور کام کرنا ہے، کچھ دیر بعد میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گی۔ ان دونوں کو وہیں دفن کر دینا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ممکن ہے مجھے لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے۔ ناہید کے لہجے کی نرمی پھر لوٹ آئی تھی اور اس کی آواز میں گھبراہٹ بھی نہیں تھی۔ ناہید کے ساتھیوں نے اپنے دونوں مردہ ساتھیوں کی لاش ناہید کے ساتھیوں نے اپنے دونوں مردہ ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں اور ناہید کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ اس کوٹھی سے نکل گئے۔ میں نے اب اپنی آنکھیں کھول دیں کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ناہید اب میرے ہی پاس آنے والی ہوگی۔ وہ کام یقیناً مجھ سے ہی ملنا ہوگا جس کے بارے میں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور ان کے
के हमरा नहीं गई थी। इस सूरत-ए-हाल ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। इसका मतलब ये था कि मुजाहिदीन की गिरफ्तारी अब भी जारी थी और जाहिर है कि इन गिरफ्तारियों के पीछे जब्बार का हाथ था। इसने आला हकाम को मुजाहिदीन के ठिकाने से आगाह किया होगा। इसने अपने हमजाद के जरिए मुजाहिदीन के बारे में मालूमात इकट्ठा करके अंग्रेजों तक पहुंचाई होंगी। मैं चाहता तो जब्बार को इसी वक्त खत्म कर देता जब हमजाद ने मुझे बताया था कि वो नापाकी की हालत में पड़ा है। इस वक्त इस पर हमला किया जाना मुमकिन था और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपने मिजाज से मजबूर था। मेरी सरशस्त ही कुछ ऐसी थी कि मुझे दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने में लुत्फ आता था। कभी कभी मेरा यही मिजाज मेरे लिए नुकसानदेह हो जाता था, मगर मैं अपने मिजाज और आदत के सामने मजबूर था। जिन मुजाहिदीन को आज नहीद ने आजाद कराया था, यही जानने के लिए मैंने हमजाद को मुखातब किया, जो मेरे करीब ही मुअद्दब खड़ा था। गालिबन मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ तुम इससे बेखबर नहीं होगे। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, जी हाँ, मुझे बाखूबी इल्म है। आप मुजाहिदीन के बारे में जानना चाहते हैं। आज दिन ही मैं इन्हें जब्बार की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया था, मगर तुमने मुझे दिन में इस वाक़े से क्यों मुतला नहीं किया? मैंने इसकी बात काट कर कहा, आज आप बहुत दिन बाद खुश नजर आए थे और कैफ व सरशारी के जिस कैफियत से गुजर रहे थे, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मुजाहिदीन को इसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी? मेरे लहजे में तलखी थी। जी हाँ, मुझे इन दो शहीदों का अफसोस है जिन्होंने इंतहाई तशद्दुद के सबब जान दे दी, जबकि इन्हें बरवक्त इमदाद से बचाया भी जा सकता था। मेरे लहजे की तलखी बढ़ गई। तुमने मेरी खुशी पर दो इंसानों को बैंट चढ़ा दिया। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मेरी आंखें मुस्तकबिल में झांकने की ऐल हैं और मैं देख रहा हूँ कि दुखों और आजमाइशों का एक तवील दौर शुरू होने वाला है। मैं आपका वफादार खादिम हूँ। आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं बसरो चशम इसे बजा लाने का पाबंद हूँ, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात से आपको आगाह भी करता रहूं। आपने अपनी आइंदा जिंदगी के लिए जो राह मुंतखब की है वो बहुत कठिन व दुश्वार है और जानलेवा भी है, जबकि आप मेरे होते हुए एक मिसाली जिंदगी बसर कर सकते हैं। आपके नजदीक कभी कोई दुख नहीं आ सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दुखों से भरी हुई जिंदगी को खुद गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमजाद एक ही सांस में बहुत कुछ कह गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ है? मैंने सवाल किया। मुझे इख्तलाफ का कोई हक नहीं, मगर जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं, इससे आपको आगाह करना मेरा फर्ज है। हमजाद ने जवाब दिया, मुझे ये दुख कबूल है। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मैं अपनी जिंदगी का मकसद पा चुका हूँ और अब इसे खोना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि गालिबन यही सब कुछ सोचकर तुमने मुझे मुजाहिदीन की गिरफ्तारी से मुतला नहीं किया कि मैं कहीं मजीद दिलचस्पी न लेने लगूं। बहरहाल जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब से तुम मुझे हर हाल में हर बात से आगाह रखोगे। ये मेरा हुक्म है। मैं जो फैसला कर चुका हूँ इससे पीछे हटने पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं। मेरे लिए अपने दामन में दुख और आजमाइशें लाए या सुख। कुछ देर खामोश रहकर मैंने हमजाद से इस अंग्रेज अफसर के बारे में मालूम किया जिसे नाहिद ने ठिकाने लगाया था। वो इस शहर का कमिश्नर था। इसकी ईमा पर मुजाहिदीन को बजाय पुलिस या मिलिट्री की कस्टडी में रखने के खुद इसकी कोठी के तहखाने में रखा गया था, जहां इसकी मौजूदगी में मुजाहिदीन के साथ इंतहाई वहशत और बर्बरियत का सलूक किया गया और इसके नतीजे में दो मुजाहिदीन अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। कमिश्नर ने इन्हें बतौर खास अपनी कोठी के तहखाने में इसलिए रखा था कि इसके इल्म में आ चुका था कि इसने पहले जिन मुजाहिदीन को मिलिट्री कस्टडी में रखा गया था वो फरार होने में कामयाब
दस्तयाब हो गए थे। हमजाद ने मुझे तफसील से बताया। इस वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी और मैंने फौरन हमजाद को दरवाजा खोलने का इशारा किया। इस वक्त मुझसे मिलने नाहिद के अलावा और कौन आ सकता था। दरवाजा खुला तो मेरे ख्याल की तस्दीक भी हो गई। वो आज भी कल वाले हुलिये में थी। इस खून से खुद ब खुद दरवाजे को बंद होते और कुंडी लगते देखा, मगर आज इसकी आंखों में हैरत नहीं थी। इसने आगे बढ़ते हुए चेहरे से नकाब हटा दी और मेरे बराबर रखी हुई आरामदेह कुर्सी पर बिल्कुल कल की तरह बैठ गई। इस वक्त इसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि अभी कुछ देर कबल वो किसी को कत्ल करके आई है। मुझे गालबन पहुंचने में कुछ देर हो गई। मैं इसके लिए तुमसे माजरत तलब करती हूँ। शेख नाहिद की नरम और ठंडी आवाज मेरी समात से टकराई। यकीनन तुम किसी और अहम काम में मसरूफ हो गई थी। मैंने ये जुमला कहकर इसका रद्दे अमल इसके चेहरे पर तलाश किया, लेकिन मुझे मायूसी हुई। नाहिद को अपने असाब पर पूरा काबू था। हाँ, कुछ यही समझ लो। खैर, इन बातों को छोड़ो। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? इसने कहा। मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था, मैंने जवाब दिया। लेकिन चलेंगे किस तरह और कहाँ? मैंने सवाल किया। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो पुरस्कून लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि तुम अपने एक पैर से भी माजूर हो, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि तुम्हें ज्यादा जहमत न उठानी पड़े। तुम्हें बस यहाँ से उठकर नीचे गली तक चलना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें अपनी बैसाखियाँ इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ इस वक्त पड़ेगी जब हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके होंगे। मुझे ख्वाह मजाक सूझा और मैंने कहा, तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि मैं बैसाखियों के सहारे के बगैर चलने फिरने से माजूर हूँ। मैं तुम्हारे साथ बगैर बैसाखियों के चलूंगा। ये अलग बात कि अपने पांव पर न चलूं। मेरी बात सुनकर वो कुछ उलझ सी गई। मेरे लहजे की मावनियत इस वक्त तक नहीं खुल सकती थी जब तक वाकई वो ये न देख लेती कि मैंने बैसाखियां भी इस्तेमाल नहीं की और अपने पैरों को भी इसके साथ चलने के लिए काम में नहीं लाया। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं शेख। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारा एक पाँव बेकार है, जिसका सबूत ये बैसाखियां भी हैं जो तुम्हारी मसहरी की पट्टी से लग रखी हैं। तुम भी ठीक ही कह रही हो। जब तक देखने वाला अपनी आंखों ही से नहीं देख लेता, यकीन ही नहीं करता, तो फिर मैं चलूं इसके साथ? मैं हमजाद को इशारा किया। वो गालबन मेरा मतलब पूरी तरह समझ गया। इसने मुझे मसहरी से एक पाँव नीचे रखते ही उठा लिया। अब मेरे दोनों पाँव कमरे के फर्श से तकरीबन 6 इंच खला में मुअल्लक थे और मैं तैरता हुआ सा कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हमजाद को रुकने का इशारा किया क्योंकि मैंने महसूस किया था मेरे पीछे नाहिद नहीं आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो तस्वीरें हैरत बनी हुई मुझे घूरे जा रही थी और इसकी आंखों में हैरत व इस्तेहाब के साए मंडला रहे थे। इसके लिए ये सब कुछ बड़ा गैर यकीनी था। तुमने देखा कि मैंने चलने के लिए ना तो बैसाखियां इस्तेमाल की और ना ही अपने पैर। अब तुम मेरी बात का मकसद समझ गई, मगर ये किस तरह मुमकिन है? तुम क्या शहर जानते हो? आखिर तुम हो क्या? रफ्ता रफ्ता सब जान जाओगी। आओ अब चलें, मुझे वापस भी आना है। नाहिद खोई और परेशान सी मेरे साथ जीने उतरती रही। बार बार इसकी नजरें मेरे पैरों की तरफ जाती थीं। जीने से उतरकर मैंने देखा कि एक शख्स रक्षा लिए खड़ा है। इस रक्शे में बैठने का ये मेरा पहला तजर्बा नहीं था। जब मैं कलकत्ता पहुंचा था तो इस वक्त भी एक ऐसे ही रक्शे में बैठा था और मुझे याद है कि इस वक्त भी मुझे दुख हुआ था और इस दुख की वजह यही सवारी थी। ये रक्शा हाथ से खींचने वाला था। सवारी रक्शे में बैठ जाती थी और एक शख्स तकरीबन भागता हुआ रक्शे के आगे की तरफ निकले हुए 2 डंडे पकड़कर खींचता था। बिल्कुल ऐसा एहसास होता था कि रक्शे में बजाय किसी आदमी के कोई जानवर जुता हुआ है। बहरहाल मैं रक्शे में नाहिद के साथ बैठ गया। रक्शे वाले ने जमीन पर रखे हुए रक्शे के दोनों तरफ डंडों को अगले सिरे
उठाए और चल दिया। इसका कुर्ब मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं था। मैंने कुछ देर के बाद दानिस्ता मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी कि कहीं वो मेरे लहजे की थरथराहट से जज्बात की शिद्दत का अंदाजा न कर ले, जो मैं फिलहाल नहीं चाहता था। पेच दर पेच गलियों से रक्षा गुजरता रहा और न जाने कितनी देर सफर जारी रहा, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में इस कदर महव था कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। मैं चौंका इस वक्त जब रक्षा एक नीम तारीख सी गली में एक बोसीदा सी इमारत के सामने जाकर रुक गया। पहले नाहिद रक्षे से उतरी, इसके बाद मैंने हमजाद को इशारा किया। अब नाहिद के सामने फिर वही हैरान कुन मंजर था। नाहिद मुझे लेकर इस खंडर नुमा इमारत में दाखिल हुई, जिसकी एक दीवार गिरी हुई और इसके फाटक नुमा दरवाजे का एक पट भी गायब था। अंधेरा होने के सबब इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही इसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। इस गुदाज हाथ का लोच मुझे बेखुद कर देने के लिए काफी था। मैं ख्वाब के से आलम में इसके साथ बढ़ता रहा। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक सतून के पास रुकी। इसका साया मुझे झुककर कुछ टटोलता हुआ महसूस हुआ। मेरी समात से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज टकराई। नाहिद ने मेरा हाथ फिर थाम लिया। मैंने देखा कि अब वो सतून खिसक कर कुछ आगे बढ़ गया था और जहाँ वो पहले था इस जगह खला नजर आ रहा था, जिसमें धुंधली धुंधली सी रोशनी थी। वो मुझे लेकर इस खला में उतर गई जहाँ सीढ़ियां बनी हुई थीं। जैसे ही इसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, मैंने देखा कि इसने एक दाएं तरफ की दीवार में लगी हुई जंजीर खींची। हल्की सी गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि सतून फिर अपनी जगह पर आ गया होगा और तहखाने में उतरने का रास्ता अब बंद हो चुका होगा। एक छोटे से दालान से गुजरकर हम एक बड़े कमरे में आ गए। यहाँ पहुंचकर मैंने तकरीबन 30-35 अफराद को देखा, जिनमें से कई अफराद को मैं पहचान गया। इनमें वो भी लोग शामिल थे जिन्हें मैंने हमजाद के जरिए रिहा करवाया था और वो भी थे जिन्हें कुछ देर पहले आज ही रात नाहिद ने कमिश्नर के तहखाने से आज़ादी दिलाई थी। मैंने इन सब के चेहरों पर दुखों के साए मंडलाते हुए महसूस किए। गालबन इन्हें अपने दोस्तों से बिछड़ने का मलाल था। हमारे वहां पहुंचते ही इनमें से किसी ने नाहिद को मुखातब किया, मलका, हमने तुम्हारे कहने के मुताबिक इन दोनों को गुस्ल देकर यहीं दफन कर दिया है। मैं मलका का लफ्ज़ सुनकर फिर उलझा। इससे पहले मैं एक मर्तबा और भी आज ही की रात ये लफ्ज़ सुन चुका था और मुझे इस वक्त भी उलझन महसूस हुई थी। जिस लड़की का नाम हमजाद ने नाहिद बताया था, इससे ये लोग मलका कहकर मुखातब कर रहे थे। आखिर क्यों? जहां हमें बिछड़ने वालों का दुख है, वहीं आज हमारे लिए एक नवीद भी है। आज हमारे साथियों में एक नए खिदमतगार का इजाफा हुआ है। ऐदनामे पर दस्तखत होने के बाद इस शख्स का नाम भी रख दिया जाएगा। ये कहकर इसने किसी को मुखातब किया, अमीनुल्लाह, क्या तुमने ऐदनामा तैयार कर लिया है? हाँ मलका, मैं अभी लाता हूँ। इस शख्स ने जवाब दिया जिसे अमीनुल्लाह कहकर मुखातब किया गया था। अमीनुल्लाह इस बड़े कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर चला गया। मैं सब कुछ खामोशी से देख और सुन रहा था। हालांकि बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मसलन खिदमतगार से नाहिद का क्या मतलब था और मेरा नाम रख दिया जाएगा से इसकी क्या मुराद थी। इस बड़े हालनुमा कमरे के फर्श पर बड़ी बड़ी दरियां बिछी हुई थीं, जिन पर इन लोगों ने बिस्तर लगाए हुए थे। इन्हीं में से एक बिस्तर पर मैं और नाहिद बैठे थे। बिस्तर थोड़े थोड़े फासले से बिछे हुए थे। कमरे में कई शमादान रोशन थे। कमरे में मौजूद तमाम अफराद अपने अपने बिस्तरों पर बैठे हुए और इस तरह खामोशी से सर झुकाए बैठे थे जैसे किसी सोगवार तकरीब में शरीक हों। वो आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कुछ ही देर में अमीनुल्लाह कमरे में दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में कोई कागज़ था और दूसरे हाथ में
جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پاک۔ امین اللہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا تو ناہید نے مجھے مخاطب کیا، شیخ تم کہہ چکے ہو کہ ہر حال میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر تم اپنے ارادے پر قائم ہو تو کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر تمہیں اس عہد نامے کی عبارت کو بآواز بلند پڑھنا ہوگا۔ اس دوران امین اللہ نے ایک کاغذ میری طرف بڑھایا اور اپنے ہاتھ میں قرآن شریف تھام کر میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنا دایاں ہاتھ قرآن پاک پر رکھا اور کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت بآواز بلند پڑھنے لگا۔ میں خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس اور اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمنان دین سے برسرے پیکار رہوں گا، اپنے امیر کا ہر حکم بجا لاؤں گا اور ہر حال میں تنظیم کا وفادار رہوں گا۔ اگر خدا نخواستہ میں گرفتار ہو گیا تو اپنے ساتھیوں اور تنظیم کے بارے میں ایک حرف بھی زبان پر نہ لاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس مختار کل کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آخری دم تک اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہر حال میں عمل کروں گا۔